Hello and welcome on my YouTube channel Mohammad Zakaria, and in this video we will solve the remaining exercise of chapter 4 primary economic activities from question number 5 to question number 8. So let's begin from question number 5. Differentiate between number 1 lumbering in equatorial forest and temperate forest. So number 1 in lumbering equatorial forest. Lumbering is practiced in equatorial evergreen forest. Lumbering is practiced in temperate coniferous forest. Number 2, many species of trees are found in small area. Number 2, only one species of trees is found in an area. Number 3, hardwood trees are found in equatorial forest. Number 3, softwood trees are found in temperate forest. Number 4, accessibility is difficult in equatorial forest. Number 4, good accessibility in temperate forest. Number 5, inhospitable climate, because the equatorial region have hot and humid climatic condition. Number 5, hospitable climate, the temperate region have temperate climate, not too much cold and too much hot. It is moderate climatic condition in temperate forest region. Number 6, traditional methods of lumbering are practiced. नंबर 6, मैकेनाइजेशन ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी. सो यहाँ पर मशीनरीज का यूज़ किया जाता है टेम्परेट रीजन में लंबरिंग में. नंबर 7, हार्डवुड डिमांड इज लेस इन मार्केट. तो जो हार्डवुड ट्रीज रहते हैं, उनके जो वुडन लॉग्स रहते हैं, उनकी डिमांड मार्केट में बहुत कम है. नंबर 7, सॉफ्ट वुड हैव हाई डिमांड इन मार्केट. तो मार्केट के अंदर जो सॉफ्ट वुड रहती है, नरम लकड़ी, उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है. सो ये रहा डिफ्रेंशिएट नंबर 1. देन नंबर 2, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर. सो वी सी पॉइंट नंबर 1 फ्रॉम प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्रैक्टिस इन ट्रॉपिकल रीजन. नंबर 1, practice in tropical temperate region. Number 2, labor intensive farming. Number 2, more use of modern machinery. Number 3, only one single crop is cultivated. Number 3, cultivation and commercial animal husbandry is done together. तो इसके अंदर जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उसमें जो फार्म होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही क्रॉप जो है इंटायर फार्म के अंदर कल्टीवेट की जाती है, सिंगल क्रॉप इसे कहते हैं. और जो एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग है, उसके अंदर कल्टीवेशन के साथ साथ, क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ, उसी फार्म के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, एक्टिविटी. नंबर 4, टी, coffee, rubber, cocoa, spices, etc. are the major crops of plantation agriculture. Number 4, wheat and maize are the major crops of extensive commercial agriculture. Number 5, this type of agriculture practiced in Malaysia, India, Sri Lanka, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कैरेबियन आइलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वियतनाम. तो ये जितनी भी कंट्रीज है, यहाँ पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो परफॉर्म किया जाता है. देन नंबर 5, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड. फॉर एग्जांपल, स्टेप्स इन यूरेशिया, प्रेरीज of North America, downs of Australia, pampas of
साउथ अमेरिका एंड वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये जितने भी ग्रांस लैंड है वर्ल्ड के, वहाँ पर एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो परफॉर्म की जाती है। देन डिफरेंशिएट नंबर 4, माइनिंग एंड फिशिंग। So number 1, man has been using minerals since ancient times for various purposes. Number 1, man has been using fish since ancient times as a food. Number 2, minerals are found naturally in the earth crust. Number 2, fishing includes all human efforts to obtain the aquatic animals from sea, inland waters and rivers. Number 3, minerals have been used for making weapons, tools, jewelry, medicines, utensils, etc. Number 3, fishing provides food to large population. Number 4, the distribution of minerals is highly uneven in the world. Number 4, fishing occupation only found in certain areas in the oceans. Number 5, mining depends on the geology of the region, the value of the minerals, climate, capital investment, technology, स्किल, लेबर, एक्सेट्रा। तो माइनिंग जो है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। उनमें वेरियस फैक्टर्स है, क्लाइमेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, तो जिसके ऊपर माइनिंग डिपेंड है। देन फिशिंग नंबर 5, फिशिंग एक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन द वाइड एक्सपांस ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ विद प्रेजेंस ऑफ शैलो वाटर, confluence of warm and cold currents, abundant plankton, broken coastline and cold climate. So ये सारे फैक्टर्स जो है फिशिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो नंबर 1, what are the factors affecting commercial fishing? सो कमर्शियल फिशिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? आंसर, देर आर मेनी फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फिशिंग। तो फिशिंग के ऊपर फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल फैक्टर्स। नंबर 1, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो फिजिकल फैक्टर्स मीन्स नेचुरल फिनोमिना, जो भी नेचुरल फिनोमिनाज है जो फिशिंग को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वाइड एक्सपांस ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ विथ प्रेजेंस ऑफ शैलो वाटर इज फेवरेबल फॉर फिशिंग। फॉर एग्जांपल, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक विच इज बिलो 200 meters of depth near ओखोटसी नियर चाइना। तो जो कॉन्टिनेंटल शेप जितने ज़्यादा वाइड और शैलो वाटर रहेगा वहाँ पर, तो उस जगह पर प्लांक्टन की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और वहाँ पर फिशिंग के लिए फेवरेबल लोकेशन पाई जाती है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर फिशिंग जो है लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है। देन नंबर 2, confluence of warm and cold currents. Confluence of warm and cold currents and subsequent growth of abundant plankton as a result, development of fishing grounds or banks takes place. For example, meeting of warm Kuroshio current with cold Oyashu currents favors coastal area near Japan for fishing. So जहाँ पर कोल्ड ओशन करंट एंड वार्म ओशन करंट्स का जो है कॉन्फ्लुएंस होता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं,
तो वो लोकेशन भी फिशिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल रहती है। वहाँ पर प्लैंकटन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर फिशिंग लार्ज स्केल पर की जाती है। फॉर एग्जांपल जो चाइना के नियर जो फिशिंग ग्राउंड है वो इसी वजह से डेवलप हुआ है। वहाँ पर दो ओशन करंट्स मिलते हैं, एक है कोरोशियो जो है वार्म ओशन करंट एंड देन कोल्ड ओशन करंट जो है ओयाशू, दोनों का कॉन्फ्लुएंस उस जगह पर होता है। नंबर 3, ब्रोकन कोस्ट लाइन। ब्रोकन कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स एक्सीलेंट पोर्टल फैसिलिटीज। तो जहाँ पर ब्रोकन कोस्ट लाइन रहते हैं तो वहाँ पर सी पोर्ट जो है वो नेचुरली डेवलप हो जाते हैं, तो इसलिए फिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा वो फेवरेबल रहते हैं। नंबर 4, कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट इन टेम्परेट रीजन्स फैसिलिटेट्स प्रिजर्वेशन ऑफ फिश इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज हैव टू बी डेवलप। तो जिन कंट्रीज के अंदर कोल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, फॉर एग्जांपल जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर फिश को प्रिजर्व करने के लिए नेचुरली वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है, जिसकी वजह से फिश जो है ज़्यादा देर तक जो है वो ख़राब नहीं होती है और उसकी सेल की जा सकती है मार्केट में, उसे स्टोर कर रखने के बाद भी। देन नंबर 5, नियर बाय फॉरेस्ट। नियर बाय फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड फॉर शिप बिल्डिंग्स। तो जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वो शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्रीज रहती है उन्हें वुड प्रोवाइड करने का काम करती है। देन ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिशिंग, द ट्रेडिशनल स्किल। नंबर 6, ट्रेडिशनल स्किल्स। The traditional skills of some people who are naturally good at fishing, for example, Japanese and Chinese, the fishing activity has further developed over here. तो ट्रेडिशनल स्किल भी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फिशिंग डेवलपमेंट में। देन नंबर 7, लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, lack of land and absence of other protein food makes island countries especially dependent on fish as a staple food. For example, Japan and Philippines. तो जो इन कंट्रीज़ की लार्ज पॉपुलेशन रहती है तो उस कंट्रीज़ को जो भी फूड की नीड रहती है उसे कंप्लीट करने के लिए वो फिशिंग जो है लार्ज स्केल पर उस कंट्री में परफॉर्म की जाती है, ताकि जितने भी पॉपुलेशन है उनकी जो भी डिमांड है फूड की उसे कंप्लीट किया जा सके। और जो प्रोटीन फूड है, ये फिश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, इसलिए जो प्रोटीन फूड है उसके भी इससे सप्लाई किया जाता है। और जो आइलैंड कंट्री है तो वो भी स्पेशली उनका मेन ऑक्यूपेशन ज़्यादातर जो है वो फिशिंग रहता है, फॉर एग्जांपल जापान एंड फिलीपींस। Number 8, absence of alternative occupation. Absence of alternative occupation makes fishing a major occupation. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज या रीजन है वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर दूसरी कोई ह्यूमन एक्टिविटी करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड का अगर एग्जांपल ले तो उसका जो इंटायर एरिया है वो ज़्यादातर आइस कवर है, तो उसके जो कोस्टल एरिया है सदर्न कोस्टल पार्ट ग्रीनलैंड का, तो वहाँ पर लार्ज स्केल पर फिशिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है क्योंकि वहाँ पर और कोई दूसरा ऑक्यूपेशन मौजूद नहीं है बिकॉज ऑफ आइस कवर एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नंबर 9, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज्ड इन फिशिंग एक्टिविटी। तो फिशिंग एक्टिविटी में अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बहुत लार्ज स्केल पर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मछलियों को पकड़ना बहुत ही आसान हो गया है और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की मदद से मछलियों को पकड़ा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो फिशिंग को डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट on intensive subsistence agriculture. Answer,
In many parts of the world, aggregate and communities practice substance cultivation to some extent. In intensive subsistence agriculture is practiced intensively, and the main purpose of the cultivation is to produce crops for self and family consumption. In other words, subsistence agriculture is the cultivation of crops and raising of animals to support the farmer and his family members. तो जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ज़्यादातर जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पर जो फार्मर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं, और जो फार्म की साइज़ भी जो रहती है बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है, तो ऐसे एरिया के अंदर ये एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है, जिसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसका जो मेन पर्पस रहता है इस एग्रीकल्चर का है टू प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर सेल्फ एंड फैमिली कंजम्पशन। तो जो भी प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, तो वो ज़्यादातर फैमिली मेंबर्स जो है फार्मर और फार्मर के फैमिली मेंबर ही उसको यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉफिट उन्हें मिलता नहीं है। अगर कुछ एक्स्ट्रा फिर भी प्रोडक्शन बच जाए फैमिली में कंजम्पशन होने के बाद, तो उसे वो फिर जो लोकल मार्केट रहता है वहाँ पर उसे सेल करते हैं। तो ये एक तरह से किसान का जो है इससे गुजर बसर होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह नहीं मिलता, इसलिए इसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें फार्म की साइज़ बहुत ही छोटी रहती है, किसान भी इसमें बहुत ज़्यादा पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, और मेन उनका पर्पस जो रहता है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर फैमिली कंजम्पशन। सो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अभी हम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। Number 1, side heading, very small size of farms. In this type of farming, land holding is very small. This is because of high density of population and the fragmentation of farms. The size of the farm is about 0.5 to 1.25 hectares. Thus, due to small size of farm, यूज़ ऑफ मशीनरी इज़ वेरी लिमिटेड। तो इसमें जो फार्म की साइज़ रहती है बहुत ज़्यादा स्मॉल रहती है, और ज़्यादातर ये हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में परफॉर्म की जाती है, जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो एरिया रहता है एग्रीकल्चर एरिया वो बहुत ही छोटा होता है, और जो खेतों की साइज़ रहती है फार्म की वो 0.5 हेक्टर से 1.25 हेक्टर तक होती है। और इसमें फार्म की साइज छोटी होने की वजह से इसमें जो सारे काम किए जाते हैं वो ज़्यादातर किसान खुद अपने हाथों से करता है, मैनुअल उसमें काम करता है, मशीनरीज का यूज़ उसमें नहीं किया जाता है, बहुत ही लिमिटेड मशीनरी इसमें यूज़ की जाती है। देन नंबर 2, इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। लैंड इज कल्टिवेटेड इंटेंसिवली बाय द पीजेंट्स. Even marginal land is also brought under cultivation. Chemical fertilizer and pesticides and even manure are used on large scale to retain fertility of soil. Form is commonly grown 2 to 3 crops in a year. तो इसमें जो इंटेंसिवली लैंड का यूज़ किया जाता है, यानी कि इसमें जो भी फार्म रहता है उसमें एक के बाद एक जो है वो अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन इसमें जो फार्मर है वो हासिल करता है। यानी कि एक सीज़न के अंदर वो राइस को कल्टीवेट करता है, और जब राइस का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर वो किसी दूसरी वेजिटेबल को उसमें वापस शो करेगा और उसकी प्रोडक्शन हासिल करेगा। तो इस तरह से साल के अंदर ही अपने से छोटे से खेत से ही जो फार्मर रहता है वो एक साल के अंदर ही 2 से 3 क्रॉप्स जो है उसमें कल्टीवेट करता है और उनका प्रोडक्शन वो हासिल करता है अपने छोटे स्मॉल से फार्म से। नंबर 3, पर हेक्टर हाई प्रोडक्टिविटी बट पर हेड लो प्रोडक्शन. There is high productivity with less amount of land. Yield per hectare is very
high, but due to large numbers of dependent per head production is low. तो इसके अंदर फार्मर जो है अपने स्मॉल फार्म से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हासिल करता है, बहुत ज़्यादा उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हासिल होता है, लेकिन जो फैमिली मेंबर रहते हैं फार्मर के, तो जो हेड रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं फैमिली के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि एक फार्मर है और उसके फैमिली में 8 से 10 फैमिली मेंबर अगर होंगे तो एक एक के हिस्से में जो भी प्रोडक्शन मिलेगा पर हेड प्रोडक्शन वो बहुत ही लो हो जाता है। यानी कि एक एक के हिस्से में बहुत ही कम हिस्सा मिलता है, उन्हें डिवाइड हो जाता है 10 मेंबर में फैमिली के। तो अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर एक फार्म से 100 किलो अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले, 100 किलो अगर वहाँ से राइस उसे मिला जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर उसके फैमिली में 10 मेंबर्स है तो ये 100 किलो 10 मेंबर में डिवाइड होगा, मीन्स एक एक मेंबर के लिए सिर्फ 10 केजीज उसके हिस्से में आएगा। तो इस तरह से फैमिली मेंबर जितने ज़्यादा रहेंगे फार्मर के, उतने ही प्रोडक्शन जो रहेगा वो कम होगा पर हेड प्रोडक्शन। नंबर 4, मैनुअल लेबर एंड यूज ऑफ एनिमल्स। Large labor force is required for this type of agriculture, as most of the agricultural operations are done manually. Dense population fulfills the requirement of labor. Animals like bullocks and water buffaloes play an important role in the agricultural economy. तो इसमें फार्म की साइज छोटी होने की वजह से और किसान के पास भी इतना कैपिटल नहीं रहता है कि वो हैवी मशीनरीज को परचेस कर सके और उनका यूज़ कर सके। तो इसमें ज़्यादातर जो फार्म के ऊपर के काम होते हैं वो ज़्यादातर मैनुअली किए जाते हैं। उसमें ज़्यादातर काम करने वाले जो लेबर रहते हैं वो फार्मर के खुद फैमिली मेम्बर ही होते हैं जो फार्म के ऊपर काम करते हैं और जो भी प्रोडक्शन के वर्क हो उसे कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर वर्कर है या एग्रीकल्चर लेबर है, हाई पॉपुलेशन होने की वजह से उन्हें आसानी से लेबर भी मिल जाते हैं काम करने के लिए फार्म के अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर एनिमल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे कि ब्लॉक्स, जैसे गाय बैल वगैरह का यूज़ भी इसके अंदर बड़े पैमाने पर किया जाता है और मशीनरीज बहुत कम यूज़ होती है इसमें। नंबर 5, dominance of food crops. Though variety of crop is grown in this agriculture, food crops are the dominant. Rice is the major crop. Other crops are maize, wheat, pulses, millets and vegetables. तो जो डोमिनेंस है इसमें ज़्यादातर जो फूड क्रॉप्स है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा की जाती है। यानी कि जो फार्मर जो है अपने लिए फैमिली के लिए यूज़ करता है प्रोडक्शन के लिए, जिससे फैमिली को फूड मिलता है, ऐसी क्रॉप्स की वो ग्रोथ इसमें करता है, प्रोडक्शन करता है अपने फार्म के अंदर। तो इसमें फूड क्रॉप का डोमिनेंस रहता है, जैसे कि मेज हो गया, वीट हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट्स एंड वेजिटेबल इसमें ग्रोथ की जाती है। और राइस इसकी जो है मेजर क्रॉप है, राइस लार्ज स्केल पर यहाँ पर परफॉर्म की जाती है इसके एग्रीकल्चर। देन नंबर 6, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो किन एरियाज में एग्रीकल्चर परफॉर्म की जाती है उसमें चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, श्रीलंका एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर जो है वो एशियन कंट्रीज के अंदर परफॉर्म की जाती है। नंबर 3, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग। आंसर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट गार्डनिंग आर एज फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, मार्केट गार्डनिंग इज ए रिजल्ट ऑफ urbanization. Urban people demand some agricultural products like vegetables, fruit, flowers, milk, etc. fresh and daily. तो ये मार्केट गार्डनिंग जो है ज़्यादातर इसे अर्बनाइजेशन की वजह से इसकी डेवलपमेंट हुई है। मार्केट गार्डनिंग को इसे
इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। तो जो भी अर्बन पीपल रहते हैं उन्हें रोज़ाना जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ती है, फ्रूट फ्लावर्स और मिल्क की ज़रूरत पड़ती है, फ्रेश एंड डेली ये ताज़ा सब्जियां और जो भी फ्रूट्स वगैरह है वो उनकी ज़रूरत पड़ती है शहरी लोगों को। नंबर 2, इन ऑर्डर टू मीट दिस डिमांड फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स इन द अर्बन फ्रिज। तो इस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, अर्बन पीपल की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो वेजिटेबल की ग्रोथ करते हैं, उनकी कल्टीवेशन करते हैं। जो अर्बन फ्रिंज एरिया रहते हैं यानी कि शहर के जो सराउंडिंग एरिया रहते हैं, शहर के आउटसाइड एरियाज रहते हैं, वहाँ पर ये जो फार्मर्स है इस तरह की एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं शहर के थोड़े बाहरी इलाकों के अंदर। नंबर 3, साइज ऑफ द फार्म इज वेरी स्मॉल इन मार्केट गार्डनिंग। तो इसके अंदर जो फार्म की साइज रहती है बहुत ही छोटी रहती है, उसके बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है अर्बन एरियाज के अंदर, और जो प्राइस रहता है लैंड का वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से जो फार्मर है स्मॉल फार्म के अंदर ही कल्टीवेशन करता है। नंबर 4, scientific and technological knowledge as well as manual labor to some extent is used in production. Use of capital is very high. तो इसके अंदर मार्केट गार्डनिंग में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें साइंटिफिक तरीके से ये मार्केट गार्डनिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ इसके अंदर किया जाता है और मैनुअल लेबर का भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसमें कैपिटल भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें लगता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इज़ वेरी हाई इन मार्केट गार्डनिंग। नंबर 5, नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र आर यूज। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स रहते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ increase in crop production. Number 6, generally it is practiced in areas lying at a distance of an overnight journey by the trucks to carry fresh products to the market. Hence this farming is also known as truck farming. तो इसके अंदर जो फार्मर का जो खेत रहता है वो इतने डिस्टेंस पे रहता है कि वो सिर्फ एक रात का ही डिस्टेंस कवर करके जो ट्रक होती है वो शहर तक पहुंच सके, इतना इसमें डिस्टेंस रहता है शहर से और जो फार्म रहता है, जो एग्रीकल्चरल लैंड रहता है फार्मर का, उसके दरमियान। क्योंकि जो भी प्रोडक्शन किया जाता है मार्केट गार्डनिंग के अंदर तो ज़्यादातर पेरिशेबल रहता है, यानी कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें रहती है, जैसे वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट, मिल्क। तो इसे फ्रेश पहुंचाने के लिए शहरों तक इसे रात के अंदर ट्रक के अंदर इन सारे प्रोडक्शन को डाला जाता है और वो ट्रक जो है रात भर ट्रैवल करते हुए सुबह तक जो है जो मेन मंडी रहती है, जो मार्केट रहता है सिटी का, अर्बन एरियाज का, वहाँ तक वो जितने भी प्रोडक्ट्स है उसे पहुँचा देती है। तो इस फार्मिंग को इस वजह से ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो मार्केट गार्डनिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग बिकॉज large scale trucks are used in market gardening for transportation of agricultural products. Number 7, for example, vegetables and fruits grown at Vasai, Virar and Nasik are carried to Mumbai. तो इसके एग्जाम्पल जो है मुंबई जो एक लार्ज सिटी है और वहाँ पर बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो उसके जो सराउंडिंग सिटीज़ है, वसई हो गया, विरार और नासिक, तो यहाँ के जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो फार्मर है मार्केट गार्डनिंग करते हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है उसे रात में ट्रक में लोड करते हैं और ट्रक जो है वो ओवरनाइट जर्नी करते हुए मुंबई तक पहुँचती है और मुंबई में वो फिर मुंबई के अलग अलग हिस्सों में
ये सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है। तो अगर हम रात के वक्त देखेंगे हाईवे के ऊपर, नासिक मुंबई हाईवे जो है उस पर बहुत सारे जो है ट्रक्स आपको मुंबई की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। नासिक से जो फ्रूट्स के ट्रक रहते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क के टैंक रहते हैं, तो ये सारे मुंबई को सप्लाई किया जाता है प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स फ्रॉम खेड़, शिवापुर, सासवड़ आर ब्रॉड टू पुणे। तो मुंबई भी एक मेजर सिटी है, तो यहाँ की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो खेड़, शिवापुर है और सासवड़ जो एरिया है पुणे के ही करीब के इलाकों में, तो यहाँ से ये सारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उन्हें पुणे में सप्लाई किया जाता है ट्रक के ज़रिए। तो इसलिए इसे मार्केट गार्डनिंग कहते हैं और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 4, राइट ए नोट ऑन द एरियाज इन द वर्ल्ड प्रैक्टिसिंग कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री। तो वर्ल्ड के अंदर किन एरियाज के अंदर कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री जो है वो परफॉर्म की जाती है, उन एरियाज के बारे में देखना है हमें। सो पॉइंट नंबर 1, commercial animal husbandry is practiced in 30 degree north to 60 degree north latitude and 30 degree south to 55 degree south latitude। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के अंदर ये परफॉर्म की जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में 30 डिग्री साउथ टू 55 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के दरमियान कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। नंबर 2, कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री इज प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स ऑफ स्टेप्स इन रशिया, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, वेल्स इन साउथ अफ्रीका एंड पंपास प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना। तो वर्ल्ड के जितने भी ग्रासलैंड और जो प्लेन एरियाज है वहाँ पर सब जगह पर एनिमल हस्बेंड्री जो है वो कमर्शियल स्केल पर की जाती है। नंबर 3, इन दिस एरियाज देयर इज ए कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज ग्रास फॉर एनिमल्स। इन दिस एरियाज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इज डन टुगेदर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग नीड्स huge capital investment and more use of modern machinery, advanced technology, market and large land। तो ज़्यादातर जो है जो एग्रीकल्चरल लैंड रहते हैं, जैसे कि जितने भी हमने एरियाज देखे ग्रास लैंड, तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी लार्ज स्केल पर परफॉर्म की जाती है और साथ ही साथ जो एनिमल हस्बेंड्री है ऑक्यूपेशन, ये भी दोनों एक सेम एरियाज के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। तो दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए ऑक्यूपेशन ग्रास लैंड के अंदर एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, एंड इसके अंदर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है एनिमल को परचेस करने के लिए, देन उनके हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और उन्हें ग्रास प्रोवाइड करने के लिए, और जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उन्हें हासिल करने के लिए भी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता, मॉडर्न मशीनरीज उसमें यूज़ होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और मार्केट एरिया होना चाहिए ये सारे प्रोडक्शन को सेल करने के लिए, और बहुत लार्ज लैंड की ज़रूरत पड़ती है, बहुत बड़े एरिया के अंदर ये कमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री जो है वो परफॉर्म की जाती है। नंबर 4, in North and South America it is carried with the help of advanced technology on a commercial scale। so North America, South America कॉन्टिनेंट के अंदर एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए परफॉर्म की जाती है। देन नंबर 5, माइनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स। एक्सप्लेन। सो माइनिंग जो ऑक्यूपेशन है वो डायरेक्टली जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है। तो उसका आंसर है मैन हैज बीन यूजिंग मिनरल्स सिंस एशियन टाइम्स।
Number 2, minerals have been used for making weapons, tools, jewelry, medicine, utensil, etc. Number 3, man cannot manufacture the minerals that are found नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट. तो मैन कभी भी मिनरल्स को खुद से नहीं बना सकता, वो नेचुरली अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है मिनरल्स. नंबर 4, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इज हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड. तो जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है. कुछ एरिया जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स मौजूद है, तो कुछ एरिया में बहुत कम मिनरल्स पाई जाती है. तो ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का. नंबर 5, दिस एक्टिविटी डिपेंड्स सोलली ऑन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड नॉट रिलेटेड टू लैटिट्यूड डायरेक्टली. तो जो माइनिंग एक्टिविटी है वो डायरेक्टली जो है प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है, ना कि लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड है. Number 6, it also depends on the geology of the region, value of minerals, quality of minerals, capital investment, technology and availability of skilled labor etc. तो माइनिंग एक्टिविटी जो है वो जियोलॉजी के ऊपर डिपेंड है. देन मिनरल वैल्यू ऑफ मिनरल्स, क्वालिटी ऑफ मिनरल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल लेबर, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है माइनिंग डिपेंड है. नंबर 6, राइट इन डिटेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है? सो आंसर नंबर 1, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग एंड agriculture are the important primary economic activities of man. These activities are solely depend on nature. तो जितनी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो सारी प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो हंटिंग हो, गैदरिंग हो, फिशिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, माइनिंग या एग्रीकल्चर हो. ये सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सब के सब नेचर के ऊपर डिपेंड है. Number 2, all these activities are dependent on nature. Number 3, primary activity is mean extraction of mineral resources. तो primary activity का मतलब ही है extraction of natural resources. तो natural resources का इसमें extraction किया जाता है, natural resources का इसमें use किया जाता है primary activity में. Number 4, these activities mainly produce raw materials required in different types of industries. तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एक तरह से रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने का काम करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को. नंबर 5, नेचुरल कैलामिटीज इफेक्ट्स मोस्ट ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो नेचुरल कैलामिटीज भी जो है बहुत ज़्यादा जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे इफेक्ट करती है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के. देन पॉइंट नंबर 6, इन डेवलपिंग कंट्रीज वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज engaged in primary activities. Since there is less use of machinery in developed countries, there is less proportion of working population engaged in primary activities since there is a more use of machineries. तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से टेक्नोलॉजी और मशीनरीज का यूज़ बहुत कम किया जाता है और इतने ज़्यादा ये डेवलप नहीं हुए हैं कि ये लार्ज स्केल पर मशीनरीज को यूज़ कर सके. और जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर ज़्यादातर जो है लोग वो नॉन प्राइमरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जुड़े हुए रहते हैं. तो इस तरह से प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादातर जो है वो
डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर परफॉर्म की जाती है और लार्ज स्केल पर वहाँ की पॉपुलेशन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर इंगेज रहती है। नंबर 7, to fulfill the needs of growing population, to provide technical help to manpower etc. mechanization was started in primary activities। so अभी रिसेंटली जो है जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड जो है एज ए रॉ मटेरियल या डायरेक्टली एज ए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ किया जा रहा है और साथ ही साथ मैन पावर का भी यूज़ किया जाता है। तो दोनों अभी रिसेंटली इसमें यूज़ की गए हैं। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जा रहा है, लार्ज स्केल पर मशीनरीज भी यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर अभी मशीनरीज का यूज़ किया जा रहा है, जिससे जो भी डिमांड से उसे कंप्लीट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शो द फॉलोइंग विथ अप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड प्रिपेयर एन इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हमें इंडेक्स बनानी है, इस तरह से नाम दिए जाएंगे। ऑलरेडी नाम की मैंने इंडेक्स यहाँ पर बना ली है। तो सवाल में एग्जाम में सिर्फ सीरियल नंबर और नेम रहेंगे पॉइंट्स के, उसकी हमें पहले इंडेक्स बनानी है। 3 कॉलम, सीरियल नंबर, टाइटल एंड साइन। तो हमें जो साइन हमें मैप पर बनाना है वही साइन जो है हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैप पर पॉइंट नंबर 1 वो है डॉगर बैंक फिशिंग एरिया। तो डॉगर बैंक फिशिंग एरिया जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर है। तो यहाँ पर ये इंटायर एरिया जो है ये डॉगर फिशिंग एरिया है, डॉगर बैंक फिशिंग एरिया, जहाँ पर वर्ल्ड में लार्ज स्केल पर फिशिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े फिशिंग एरियाज में से ये एक एरिया माना जाता है जिसका नाम है डॉगर बैंक, जो अटलांटिक ओशन के अंदर है। देन नंबर 2 है एरिया ऑफ लंबरिंग इन एशिया। तो यहाँ पर ग्रीन एरोस से जैसे बनाए गए, जैसे इंडिया के अंदर कर्नाटक, उसके अलावा जो हिमालयन रीजन है, देन म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, चाइना। तो ये जितने भी एशियन कंट्रीज़ है यहाँ पर लंबरिंग एक्टिविटी जो है एशिया के अंदर परफॉर्म की जाती है। जितने भी यहाँ पे हमें ग्रीन सिंबल दिख रहे हैं, तमाम सिंबल को मैप के ऊपर बनाना है और साथ में सीरियल नंबर के साथ साथ उनका नेम भी वहाँ पर मेंशन करना है जो हमने इंडेक्स में बनाया है। देन नंबर 3 एरिया ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डाउन्स ग्रास लैंड है इस जगह पर मौजूद है। तो यहाँ पर लार्ज स्केल पर एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। नंबर 4 एन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर, इस एरिया के अंदर लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। आफ्टर दैट नंबर 5 माइनिंग एरिया इन अरेबियन सी। तो माइनिंग एरिया इन अरेबियन सी यहाँ पर है बॉम्बे हाई। तो यहाँ पर हमने अगर सिर्फ बॉम्बे हाई भी लिखा तब भी हमारा आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। तो माइनिंग एरिया इन अरेबियन सी जो है मुंबई कोस्टल एरिया का जो ऑफशोर एरिया है वहाँ पर बॉम्बे हाई के अंदर ये माइनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है अरेबियन सी में। ये है इसका सिंबल। देन नंबर 6 फिशिंग एरिया इन साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन। तो साउथ वेस्ट अटलांटिक ओशन मीन्स ये अटलांटिक ओशन है, जितना भी वाइट यहाँ पे हमें दिख रहा ये अटलांटिक ओशन है। ये अटलांटिक ओशन का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट और उसका साउथ वेस्टर्न पार्ट है। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर हमारा है
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर मौजूद है। तो इस एरिया के अंदर लार्ज स्केल पर साउथ वेस्ट एटलांटिक ओशन में फिशिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। तो ये मैप हो गया हमारा, टोटल 6 पॉइंट है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, सिंबल बनाना है मैप के ऊपर, उसका सीरियल नंबर लिखना है, जो भी क्वेश्चन के ऊपर सीरियल नंबर होगा वो सीरियल नंबर, और साथ में उसका जो सेंटेंस रहेगा क्वेश्चन के अंदर वो यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो इज द डाटा अबाउट द कॉन्टिनेंट वाइज एम्प्लॉयमेंट engaged in primary economic activities in the year 2018. Draw a suitable diagram to represent the data and answer the question that follow. तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक डाटा दिया गया है जिसमें एक टेबल है, और उस टेबल के अंदर कॉन्टिनेंटल वाइज एम्प्लॉयमेंट इंगेज्ड इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की दिखाई गई, यानी कि कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन कौन सी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जुड़े हैं, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रॉम 2018 ईयर्स। तो इस डाटा के ऊपर से हमें एक सुटेबल डायग्राम भी बनाना है। तो ये डाटा इस तरह से दिया गया है, क्वेश्चन है ये हमारा। तो इस डाटा के ऊपर कॉन्टिनेंट दिए गए और दूसरे कॉलम में दिया गया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यूरोप में कितने परसेंटेज जो है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज है, एशिया में कितने लोग प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिप्रेजेंट है, ये हमें टेबल में दिखाया गया है। और इस डाटा की मदद से हमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना है जो इस टेबल को रिप्रेजेंट करे, और उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन के आंसर को सर्च करना है ग्राफ में। तो ये ग्राफ जो है हमने तैयार किया है जिसमें परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर हमने कॉन्टिनेंट्स लिए हैं। एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्टिनेंट्स को, यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कितने परसेंटेज लोग इंगेज है, ये हमें वाई एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये डायग्राम है जिसमें 0 to 15 यहाँ पर नंबरिंग दी गई है। तो हमारा स्केल जो है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% हो गया है। अगर हम देखें स्केल को तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% पॉपुलेशन इन इंगेज्ड इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ग्राफ से जिसके आंसर हमें सर्च करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन विच कॉन्टिनेंट इज लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर 10% से भी कम जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज्ड है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा आंसर जो है वो बिलो 10 जो है वो है यूरोप। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा यूरोप। इन यूरोप कॉन्टिनेंट लेस देन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो ग्राफ देख के हमें पता चल जाता है कि यूरोप में कि लोग जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 2, इन विच कॉन्टिनेंट इज मोर देन 40% पॉपुलेशन इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो कौन से कॉन्टिनेंट की 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज्ड है। तो हमारा आंसर जो है वो है अफ्रीका। अगर ग्राफ में देखें हम तो 40% से ज़्यादा वहाँ के लोग जो है वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, उसमें इंगेज है। तो टोटल परसेंटेज जो है उसका 47 नियर अबाउट है। तो आवर आंसर इज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट more than 40% population engaged in agriculture. Then last question number 3, looking at the given data, can you arrange this continent in an ascending order
ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर हमें जो टेबल दिया गया है उसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा अगर देखिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो असेंडिंग ऑर्डर जो मैक्सिमम है वो फर्स्ट पे है और उससे कम होते हुए सबसे लास्ट जो है पॉपुलेशन इंगेज्ड इन प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस तरह से हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया है। तो दिस इज द एंड ऑफ exercise of chapter 4 economic primary economic activities, and in next video I will upload the chapter 5 secondary economic activities. Till then watch my YouTube channel, share and subscribe. Thank you.